Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start looking as a lost control of this paradise with honesty, but Tata Nexon is a sub 4-meter compact SUV with a front engine, front wheel drive layout. Available across a wide price range of roughly 8 to 15 lakhs on road Delhi. यहाँ पे आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, AMT सब कुछ मिलता है. But what makes Tata Nexon unique is the 5-star global NCAP safety ratings. And with the 2020 facelift, Tata gave Nexon a revised styling and updated BS6 compliant engines. So in this video, we'll do a walk around. We'll get to know what are the features on board और इसकी drive, ride and handling सब कुछ discuss करेंगे इस वीडियो में. For reference, we have the XM variant with us today. So let's start reviewing. कहने को तो हेडलैम्प्स, फ्रंट ग्रिल एंड बम्पर डिजाइन चेंजेस ही हैं, बट नेक्सॉन लुक्स अ बिगर, बोल्डर एंड अ स्मार्टर लुकिंग कार. द हेडलैम्प असेंबली इज वेरी स्लीक लुकिंग और यहाँ पे आपको टोटल प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलता है विद द पियानो ब्लैक फिनिश रनिंग अक्रॉस द लैंप्स और नीचे एक क्रोम लाइनिंग है जो इसको डेफिनेटली एक प्रीमियम लुक देता है. नीचे की तरफ आए तो आपको ये इंडिकेटर्स ट्राई एरो बीम शेप में सेपरेट यूनिट की तरह दिए गए हैं. इवन हुड को भी थोड़ा सा फ्लैट किया गया एंड नाउ इट इज कंप्लायंट फॉर द पेडेस्ट्रियन सेफ्टी व्हिच इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर टाटा. 2020 Nexon is based on Tata's Impact 2.0 डिजाइन लैंग्वेज एंड एज आई टोल्ड ट्राई एरो थीम आपको जगह जगह देखने को मिलेगी and also the black claddings which make it look more SUV-ish now. Side में भी proportions are well looking. You get 215/60 R16 size wheel highlighted by the wheel arch claddings and boulder lines. The wheelbase is approximately 2500 mm and you get massive 209 mm of ground clearance. And I'll definitely love to test its advantage in our drive shortly. Plus, there's an ivory white belt line rising towards the rear which is giving it a more coupe-like stance. And due to the blackened A pillar, B pillar and C pillar, you get almost a feel of a floating roofline जो इसको बहुत ही अच्छा अपील दे रही है. Plus, आपको यहाँ पे रूफ रेल्स भी दिए गए हैं. The ORVMs again get a black finish with integrated turn indicators mounting. Moving to the rear, you also get this signature tri-arrow beam LED tail lamp, plus an integrated spoiler followed by a high mount stop lamp, and again ivory white X-Factor line running across the tail lamps, finished by a piano black garnish. Below that, you get widespread Nexon badging in the chrome, and नीचे आएंगे तो आपको फिर से एक black cladding दी गई है, but here you get 2 ultrasonic parking sensors for your assistance. So to put it overall, I like the new design. It is very fresh and bold and it's only the rear which doesn't bit of complement the design क्योंकि वो थोड़ा बहुत अभी भी पुरानी Nexon से मिलता जुलता है. If I talk about the safety, you get ton of features like ESP, hill hold control, traction control, brake prefill, rollover mitigation, and that is why new Nexon 2020 gives you a heavy armor when we talk about the active safety. Now let's open the hood and check what's underneath there. So you get 3-cylinder 1.2 liter Revitron turbocharged petrol engine. Peak figures की बात करें तो this is one of the best in the segment. You get 118 bhp of power at 5500 rpm which is 10 more than the previous outgoing version. And also the torque is 170 Newton meters right from 1750 to 4000 rpm. लेकिन इसका अंदाजा हमें गाड़ी को चला के पता लगेगा which we'll do shortly. The fuel tank capacity you get here is 44 liter and the mileage claimed by Tata is 16 kmpl. But ये सारा डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कहाँ चला रहे हैं, सिटी और हाईवे, ट्रैफिक कंडीशंस क्या हैं, आप लाइट फुटेड रहते हैं या एंथुसियास्टिक ड्राइवर हैं. बट स्टिल ओनर ने क्लेम किया है कि यहाँ पे आपको सिटी में 12 के आसपास और हाईवेज में नियरली 20 का भी एवरेज देखने को मिल सकता है. सो मोड्स की बात बाद में करेंगे, पहले मैनुअल पे ड्राइव करके देखते हैं. सो आई हैव शिफ्टेड इनटू द मैनुअल. तो पर्टिकुलर इसके क्रीप की बात करें तो ये लगभग 6 to 8 kmph तक का क्रीप अपने आप ले लेता है विदाउट प्रेसिंग द एक्सेलरेटर. और मैं थोड़ा सा लाइट फुटेड अगर रहता हूँ एक्सेलरेटर पे तो ये धीरे धीरे करके स्पीड को बढ़ाता है. एंड लेट शिफ्ट इनटू द सेकंड गियर. सो जो गियर शिफ्ट है वो थोड़ा सा टाइम लेता है. दैट इज अनोइंग बिकॉज AMT में ये चीज रहती है कि एक तो जर्की भी रहता है. खैर यहाँ पे मेरे को जर्क नहीं फील हो रहा गियर शिफ्ट करते हुए, लेकिन स्टिल जो गियर शिफ्टिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा है. अभी मैं कोई बहुत एग्रेसिवली नहीं चला रहा हूँ गाड़ी एंड आई एम स्टिल लाइकिंग द फैक्ट कि यहाँ पे जो ड्राइव है ये अच्छी लग रही है अभी देखने में.
आई एम हिटिंग 60 kmph राइट नाउ, और अब मैं 5th गियर को एंगेज करता हूँ। ऑल्दो यू गेट 6 गियर्स, तो मैनुअल में आप वो चीज देख सकते हैं। ऑटोमेटिक में देखना पड़ेगा कि ये 6th गियर किस स्पीड पे जाके एंगेज होता है। तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होऊंगा और मैंने अपना फुट अच्छे से प्रेस कर दिया, सो यू कैन सी कि मैं पीछे जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो इसमें एग्रेशन आ जाता है। एंड नाउ आई एम फीलिंग कि यहाँ पे मैं एक टर्बो चार्ज इंजन चला रहा हूँ, विच इज डेफिनेटली द केस हियर। मेरे को अब जाके परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी थ्रिलिंग लगने लगी है। आप देख सकते हैं जैसी चेहरे पे स्माइल आ जाती है, दैट मीन्स कि आपको गाड़ी चलाने में अच्छी लग रही है। सो एक यू टर्न ले लेते हैं, इसका टर्निंग रेडियस भी चेक हो जाएगा। सो टर्निंग रेडियस, क्योंकि ये सब 4 मीटर कार है तो उस वजह से बहुत ज्यादा नहीं है, 5 to 5.1 मीटर, विच इज गुड। आप कोई भी और 1.2 लीटर कार चला के देखें विदाउट अ टर्बो चार्जर, तो आपको इतनी बढ़िया पावर डिलीवरी और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। एंड अब मैं इतना एग्रेसिव हूँ, मैंने 100 का मार्क भी टच कर दिया, तो फ्यूल एफिशिएंसी आपको 10-11 के आसपास मिल रही है, शायद उससे भी कम। जैसे ही आप ऑटोमेटिक में जाते हैं सामने मोड डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे इस वक्त सिटी डिस्प्ले हो रहा है। मैं इको स्पोर्ट कोई भी मोड जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। नाउ आई एम इन द इको मोड और मैं एग्रेसिव हूँ, पूरा मैंने थ्रॉटल दबा दिया है। तब भी इको में जो एक्सेलरेशन बिल्डअप होती है वो काफी स्लो है, ऐसा लगता है कि जैसे टर्बो निकाल के रख दिया गया इस इंजन में से। ये सिर्फ 1.2 लीटर है और वो भी पूरा अच्छी तरह फील नहीं होता, छोटा सा डिफरेंस है। इफ यू वांट मोर ऑफ द एक्सेलरेशन, इफ यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द फ्यूल एफिशिएंसी, तो आप सिटी मोड में जा सकते हैं और आपको थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अगर आप नेक्सॉन का फुल परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप इसके स्पोर्ट मोड को ही यूज करने वाले हैं, लेकिन देन यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द फ्यूल एफिशिएंसी, वो तो बात है। खैर मेरे को हाईवे पे जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ओनर जिनसे हमने बात की उन्होंने इको मोड में इसको टेस्ट किया हाईवे पे, तो लगभग 20 की एवरेज देखने को मिली। सेम आदमी जब इसी गाड़ी को सिटी में चला रहा है तो वो कह रहे हैं कि 14 तक जो एफिशिएंसी गिर जाती है। नॉइज और हार्शनेस की अगर मैं बात करूं, वो नहीं है कार में। एक स्टार्टिंग नोट जरूर आता है इंजन का, वो तो सिग्नेचर है और वो अच्छा भी लगता है, लेकिन चलाते हुए आप कहें कि इंजन की नॉइज कैबिन के अंदर आ रही है, दैट इज मिनिमल। पेट्रोल में तो एटलीस्ट वो चीज नहीं है। इंजन का तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है नेक्सॉन की कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ट की लगती है, और दूसरा ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, थोड़ा सा हाई है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा सा टॉल हो जाता है और उसका स्ट्रेट आपको एडवांटेज मिलता है बम्पी रोड्स पे या फिर पॉट होल्स में, क्योंकि सस्पेंशन ट्रेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक कंफर्टेबल ड्राइव मिलती है इवन इन द सिटी और इन द हाईवे ऑल्सो। जो स्टीयरिंग है दैट इज वेरी नाइस टू होल्ड, और यहाँ पे मेरे को जो इसका फीडबैक लगा वो भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसको आप हाई स्पीड्स पे लेके जाएंगे तो स्टीयरिंग में प्रॉपर वेट आ जाता है, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है इसको हाई स्पीड पे ड्राइव करने का। कि इसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी प्लाइंट राइड मिलती है। लेकिन जैसे आप हाई स्पीड्स पे प्रॉपर कॉर्नर लेते हैं तो वहां पे गाड़ी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चली जाती है एंड अंडर स्टीयर का प्रॉब्लम फील होता है, दैट इज बिट ऑफ समथिंग। एंड ब्रेकिंग की बात करें तो यस, ब्रेकिंग इज वेरी गुड। अभी मैं लाइट ब्रेकिंग करता हूँ तो वहां तक तो ठीक है। यहाँ पे गाड़ी तो बहुत सेफ है, नो डाउट अबाउट इट, और हम इतना ज्यादा इसकी चर्चा सुन चुके हैं। लेकिन द थिंग इज कि जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं ना, तो मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं फील हुआ इस पर्टिकुलर कार में। तो अगर आप बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे और आप सडनली जीरो पे आना चाहते हैं तो दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी इम्प्रूव्ड बाय टाटा। सो नाउ आई एम प्रॉपर ऑन अ हिल स्लोप। सो मैंने इस समय ब्रेक्स को एंगेज किया हुआ है और मैंने ऑटोमेटिक मोड पे डाल दिया, तो क्रीप फंक्शन डेफिनेटली काम करना चाहिए और गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। सो मैंने ब्रेक्स रिलीज की एंड कार होल्ड तो क्या छोड़िए, वो आगे जाने को तैयार है। सो आप इसको किसी भी हिल पे जो है लाके खड़ा कर दीजिए, वहां पे भी ये ऊपर जाने को तैयार रहता है। सो क्रीप फंक्शन इज वेरी गुड एंड हिल असिस्ट इसके अंदर ही इनकॉर्पोरेटेड है एक तरह से, तो आपको एज सच इस चीज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर आप हिली एरियाज में भी चलाते हैं तो कार का कंट्रोल बहुत अच्छा है। नाउ आई एम प्रॉपर ऑन यू कैन से ऑफ रोड ट्रैक, तो यहाँ पे नेक्सॉन बहुत अच्छा, बहुत ही आराम से जा रही है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ग्राउंड क्लियरेंस का फायदा आपको जगह जगह देखने को मिल ही जाता है। तो अब आप कोई ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे प्रॉपर रोड्स नहीं बनी हुई, या आपका घर या ऑफिस या वर्क प्लेस कोई भी ऐसी जगह पे है जहां पे आपको थोड़ा सा ऑफ रोड जाना पड़ता है, तो नेक्सॉन वो बड़ा ही आराम से कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो एक प्राउड फीलिंग आती है कि इंडियन बिल्ड कार इतनी अच्छी हो सकती है, बी इट द परफॉर्मेंस, द सेफ्टी, द हैंडलिंग,
द कंफर्ट ऑल्सो, आप कॉर्नर भी करते हैं तो उतना कोई बॉडी रोल नहीं है, मेरे को तो ज्यादा नहीं लगा, इससे बड़ी बड़ी एसयूवीज में बहुत ज्यादा भी लगता है, यहाँ पे आज सच कुछ नहीं है। तो एक बार अब इसका इंटीरियर्स भी चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या फीचर्स मिल रहे हैं। स्टार्टिंग विद द डोर, तो इसका वेट भी काफी है, प्लस इसका थर्ड साउंड भी बहुत एश्योरिंग फील हो रहा है। अगर इसके कुछ एलिमेंट्स पे नजर डालें, सो हियर यू गेट कंप्लीट प्लास्टिक विद अ ड्यूल टोन ट्रीटमेंट, और यहाँ पे आपको चारों विंडोज पावर्ड मिलेंगी, प्लस यू गेट अ प्लास्टिक लैच फॉर ओपनिंग द डोर। ORVMs की सारी एडजस्टमेंट आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, प्लस इसको फोल्ड भी किया जा सकता है यहीं से, एंड यू गेट अ हर्मन पावर्ड म्यूजिक सिस्टम, तो इसलिए आपको स्पीकर माउंटिंग यहीं पे देखने को मिल जाती है। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आप 1 लीटर का बॉटल होल्डर प्लस मैप पॉकेट्स तो देख ही रहे हैं, प्लस यू ऑल्सो गेट अ डेडिकेटेड अम्ब्रेला होल्डर विच इज वेरी थॉटफुल ऑफ टाटा, आई मस्ट से। नाउ टॉकिंग फ्रॉम द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो सबसे पहले तो जिस सीट पे मैं बैठा हूं दैट इज वेल कुशन्ड, आपको हर पॉसिबल एंगल से एक अच्छी कुशनिंग मिलती है, तो उसकी वजह से आपको कहीं पे भी लॉन्ग ड्राइव पे भी टायरसम नहीं फील होने वाला। हेडरूम इज डिसेंट, लेग रूम इज एडिक्वेट, कहीं पे भी इवन आप मैनुअल गाड़ी भी चलाते हैं तो आपको क्लच को ऑपरेट करते हुए आपका पैर या नी कहीं भी नहीं अड़ने वाली। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो दैट इज डी कट, इसका फील और फैक्टर बहुत अच्छा है, प्लस ये अर्गोनॉमिकली डिजाइंड है, तो चाहे स्टीयरिंग व्हील हो चाहे यहाँ पे सारे फीचर्स हो, इन पे आप अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं, द रीच इज गुड। इसके अलावा आपको डेडिकेटेड स्टोरेज स्पेस दिए गए हैं, यहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं, देन यू हैव दिस वॉलेट होल्डर, प्लस आगे देखें तो यहाँ पे मेरे को छोटी सी शिकायत है कि ये जो मोड सिलेक्टर है दैट इज बिट टू वाइड, और यहाँ पे शायद एक और स्टोरेज स्पेस आ सकती थी अगर इसको थोड़ा सा छोटा डिजाइन किया होता, बट शायद नेक्सॉन चाहती है कि इस पर्टिकुलर फीचर को हाईलाइट किया जाए, इसीलिए उन्होंने एक बड़ा सा दिया, जस्ट लाइक बोरोड फ्रॉम द लैंड रोवर। इसके अलावा ऊपर आपको एसी मिल जाता है, दिस एसी कम्स विद द कन्वेंशनल नॉब्स विद अ गुड हैप्टिक फीडबैक। देन यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये टॉप वेरिएंट में एक एक अलग फीचर बन जाता है, बट बिकॉज दिस इज XM वेरिएंट तो यहाँ पे आपको सिर्फ बूटलेड ओपनर मिल रहा है अंदर से। इसके अलावा ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन दी गई है फॉर योर इंफोटेनमेंट, एंड यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, बट यू स्टिल गेट द ब्लूटूथ कंट्रोल, AM, FM, USB, मीडिया, ऑल ऑफ दैट, एंड ऑल्सो ये बहुत छोटा सा है, प्लस इसको स्नीकली अंदर की तरफ माउंट किया गया है, जिसकी वजह से बाहर धूप का ग्लेयर भी आए तो आप इस स्क्रीन को रीड कर सकते हैं। यू गेट द टाइमिंग ऑप्शन हियर, प्लस यहाँ पे छोटा सा जो स्पेस दिया गया है यहाँ पे आप अपना फोन और वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें, सामने फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया विद द RPM ऑन द लेफ्ट साइड एंड अ बिट ऑफ द इंजन टेम्परेचर एंड फ्यूल गेज ऑप्शंस ऑन द राइट साइड। बीच में आपको स्पीड मिल जाएगी, इसके अलावा ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज, instantaneous average, all of that stuff is written here. You also get a gear position indicator which is very good, तो आपको पता लग सकता है कि आप किस गियर में और गाड़ी को किस गियर में होना चाहिए। The interiors are just as bold as the exteriors, और यहाँ पे fit and finish में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, सारा मटेरियल सिलेक्शन इज एडिक्वेट, कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग नहीं लग रही। इसके अलावा जगह जगह आपको क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं टू मेक इट लुक वेरी प्रीमियम, एंड ऑल्दो ये कोई टॉप वेरिएंट नहीं है नेक्सॉन का, लेकिन स्टिल अंदर बैठ के आपको ऐसा कुछ फील नहीं होता। टॉकिंग अबाउट फ्यू मोर एलिमेंट्स हियर, तो यहाँ पे आपको मिलता है इन कैबिन लैंप, अ सन ग्लास होल्डर एंड अ वैनिटी मिरर ऑन द सनशेड प्रोटेक्टर, प्लस जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो सॉफ्ट टच क्लोज हैं। इसके अलावा बी पिलर की बात करें तो आपको डेडिकेटेड कोट हुक दिया गया, तो ऐसा लगता है कि नेक्सॉन प्रॉपर इंडियंस के लिए डिजाइंड है, उनको पता है कि पीछे बैठने वाले लोग यहाँ पे अपना सामान भी रख सकते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखा गया। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंटीरियर्स इज दिस ग्लव बॉक्स, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड कप होल्डर्स दिए गए हैं, देन अ वॉलेट होल्डर एंड अ कार्ड होल्डर, एक छोटा सा शेर बना हुआ है जिसकी वजह से आपको मेक इन इंडिया का फील आने वाला है, एंड द कैपेसिटी हियर इज आल्सो बिग एंड ह्यूज। देन अटेंशन टू डिटेल, यू आल्सो गेट द स्मॉल हुक to handle your small stuff. Now if I talk about the rear seat, तो थोड़ा सा आपको अंदर बैठने में मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज दिस इज अ स्लोप्ड रूफ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आने में दिक्कत होती है, बट इफ यू सिट हेयर तो यहाँ पे आपको कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलने वाला। जो हेडरूम है दैट इज डिसेंट एनफ, लेग रूम बहुत अच्छा मिल रहा है, मेरे को शोल्डर सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, प्लस जो थाई सपोर्ट है दैट इज वेरी एंड वेरी गुड। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ की एमेनिटीज की बात करूं तो कुछ खास नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स नहीं दिए गए, बट यू डू गेट अ लार्ज स्टोरेज स्पेस। इसके अलावा कोई USB पोर्ट नहीं है, कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं है, तो उसके लिए आपको आगे वालों को ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। Having said that, also आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टाटा कि बेशक आप इतनी बड़ी सेफ्टी फीचर लिस्ट में से एक फीचर को निकाल लीजिए, लेकिन स्टिल यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन दीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी मच एसेंशियल। इसके अलावा अगर सीट बेल्ट्स की बात करें तो दे आर इजीली एक्सेसिबल,
बट अगेन यहाँ पे आपको जो मिडिल पैसेंजर्स है उसके लिए आपको सिर्फ लैप टाइप सीट बेल्ट ही देखने को मिलती है, विच इज अगेन अ नेगेटिव पॉइंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस, तो यहाँ पे आपको 350 लीटर्स का स्पेस देखने को मिलता है एंड दिस पार्सल ट्रे इज आफ्टर मार्केट, या कह सकते हैं कि टाटा से लगवाई हुई है, क्योंकि एक्सएम वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती। बट अगेन ये स्पेस बहुत मैसिव है और प्लस आप इस रियर सीट को फोल्ड करके स्पेस को फर्दर बढ़ा सकते हैं। और यहाँ जो मैं एक चीज अच्छी देख पा रहा हूँ, दैट आर द टॉप टेथर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, जो शायद पीछे बैठते हुए मिस हो गया। सो टाटा नेक्सॉन ऑल्सो गिव्स यू आइसोफिक्स चाइल्ड सीट प्रोटेक्शन एंड इसीलिए 5 स्टार रेटिंग मिली है, क्योंकि बच्चों का भी ध्यान रखा गया। देन यहाँ पे आपको हुक्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे 3 kg का लोड मैक्सिमम बियर किया जा सकता है, बट आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड पे टोटल मिला के 4 हुक्स मिलते हैं। यू ऑल्सो गेट दिस बूट लैम्प विच इज वेरी यूजफुल एट द नाइट्स। एंड यहाँ पे प्रॉपर आपको पैडिंग प्रोवाइड की गई है, जिसकी वजह से आपको कुछ भी नेकेड नहीं मिलता। अब बूट को बंद करते हैं, सो आई मस्ट से कि बहुत हैवी है और आपकी अच्छी खासी जान लगती है इसको बंद करने में। सो कमिंग टू द फाइनल वर्डिक्ट, टाटा नेक्सॉन 2020 फेसलिफ्ट, डिजाइन बैंग ऑन, लुक्स बैंग ऑन, सेफ्टी बैंग ऑन, फीचर्स थोड़े बहुत कम है, लेकिन इससे ज्यादा फीचर्स चाहिए तो दूसरी गाड़ियों तक जाना पड़ेगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। फिगर्स तो बहुत अच्छा बताती हैं, बट यस चलाते हुए आपको थोड़ा बहुत लोअर डाउन फील होता है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस ही आपकी प्रायोरिटी 1 है तो शायद आपको दूसरी गाड़ियों पर स्विच करना पड़ेगा। बट इफ आई टॉक अबाउट ओवरऑल पैकेज, तो नेक्सॉन में मेरे ख्याल से किसी चीज की कमी नहीं रह जाती एंड दैट्स व्हाई ये टाटा का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन चुका है आज की डेट में, और भर भर के ये गाड़ी बिक रही है इस समय दिवाली में। तो आप भी जाइए, इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए एंड हु नोज आपको भी ये गाड़ी पसंद आ जाए और शायद आपके घर में खड़ी हुई मिले। Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाओ, और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय।